السلام علیکم۔ اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دوستوفسکی۔ فیوڈور دوستوفسکی روس کا عظیم ناول نگار، عالمی شہرت پائی ناول، ڈائریاں، افسانے، رومانی اور نفسیاتی جہان کے دکھ درد کے مناظر ان کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے عظیم ناولوں کی تاریخ دوستوفسکی کے جرم و سزا اور برادرز کرامازوف کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی ہیں۔ دوستوفسکی کے ناولوں میں ایک تلاطم ہے، آندھیاں، بگولے اور پانی کے بھنور ہیں جنہیں خالص رومانیت سے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ سب ہماری مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ ان میں ہماری بینائی کھو جاتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک بے پایاں مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ ورجینا وولف۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق لکھا ہے کہ دوستوفسکی فوت ہوا تو ٹالسٹائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میرا دوست فوت ہو گیا ہے۔ ول ڈیمرٹ کہتا ہے کہ دوستوفسکی واحد نفسیات دان ہے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ دوستوفسکی ہسپتال ماسکو کے نہایت پسماندہ علاقے میں واقع تھا، جہاں ہسپتال کے گردنواح میں جرائم پیشہ لوگوں کا قبرستان تھا اور لاوارث بچوں کا فلاحی ادارہ۔ ہسپتال کا ریٹائرڈ ملٹری سرجن نہایت ترش مزاج اور غصیلا تھا۔ اس کا منچلا بیٹا اس کی آنکھ بچا کر ہسپتال کے گراؤنڈ میں مریضوں اور پجمردہ لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور ان کی تکالیف اور مسائل کو سنتا۔ پیٹر پال کلے کی قبرنما جیل کے وسیع احاطے میں 6 قیدیوں کو کالی ٹوپی پہنا کر لایا گیا۔ انہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر نقاب چڑھائے گئے۔ سامنے کھڑے سپاہیوں نے بندوقیں سیدھی کیں۔ ان کی انگلیاں بندوق کی لبلبی کی طرف بڑھنے والی تھیں کہ احکامات آ گئے۔ ان کی پھانسی 7 سال قید میں بدل گئی ہے۔ سب سے پہلے جس قیدی کے ہاتھ کھولے گئے اور چہرے سے نقاب اتاری گئی، اس قیدی کا نام تھا دوستوفسکی۔ ریٹائرڈ ملٹری سرجن کے 6 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے۔ جب وہ ہسپتال سے اپنا غسیلا چہرہ لے کر گھر آتا تو گھر میں ہو کا عالم چھا جاتا۔ وہ ووڈکا پی کر لیٹ جاتا اور 4 لڑکوں کو اپنے ارد گرد کھڑا کر لیتا اور حکم دیتا کہ میں سو رہا ہوں، کوئی مکھی میرے جسم پر نہ بیٹھنے پائے۔ وہ سو جاتا اور 4 لڑکے پنکھا جھلتے رہتے۔ سست رفتاری پر جس بچے کو سب سے زیادہ مار پڑتی، اس کا نام تھا دوستوفسکی۔ دوستوفسکی ماسکو کے سینٹ میری ہسپتال کے سرجن کے گھر 28 جنوری 1821 میں پیدا ہوا۔ باپ میخائیل دوستوفسکی ہسپتال کے سرکاری کوارٹروں میں اپنے 6 بچوں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بچوں کے باہر آنے جانے پر پابندی تھی، انہیں مارا جاتا اور انہیں کم خوراک دی جاتی۔ دوستوفسکی کا بچپن جوں توں گزرا۔ 16 سال کا ہوا تو ماں مر گئی۔ پیٹرزبرگ کے ایک اسکول میں دوستوفسکی اور بھائی میخائیل کو داخل کروایا گیا۔ پھر ملٹری انجینئرنگ اسکول میں داخل کرانا چاہا تو دوستوفسکی کے بڑے بھائی کو بری صحت کی بنا پر داخلہ نہ مل پایا۔ دوستوفسکی داخل کر لیا گیا، جہاں وہ تنہا تھا اور ناخوش۔ میخائیل سے دور رہ کر اس کی اداسی بڑھ گئی۔ باپ نے کتابوں کے لیے پیسے بھیجے، نہ کپڑے۔ باپ نے اپنے باقی لڑکوں کو ان کی ایک خالہ کے سپرد کیا اور خود لڑکیوں کو اپنی زمینوں پر لے کر چلا گیا۔ جی بھر کر شراب پی، اپنے مزارے کو جی بھر کر گالیاں دی۔ مزارے پہلے تو گالیاں سنتے رہے، پھر ایک رات تنگ آ کر اسے قتل کر دیا۔ دوستوفسکی اور اس کا بھائی خالی ہاتھ اس کی لاش کو دیکھتے رہے۔ دوستوفسکی نے پڑھائی ہی کے دوران پیسہ کمانے اور پیسہ جوئے میں ہارنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ مرتے دم تک کمانے اور کما کر جوئے میں ہارنے کی الجھن ہمیشہ رہی۔ دوستوفسکی کو اپنا بڑا بھائی میخائیل بہت عزیز تھا۔ اپنا اور اس کو خرچہ چلانے کے لیے دوستوفسکی نے اکیڈمی کی پڑھائی کے دوران ہی لکھنا شروع کر دیا اور اپنی پہلی کتاب مکمل کی، جس کا نام تھا پور فوک۔ کتاب پبلشر کو دکھائی گئی، اس نے مسودہ واپس کر دیا۔ دوستوفسکی کے دوست یہ ناول اس زمانے کے مشہور نقاد بیلنسکی کے پاس لے گئے۔ اسے ناول پسند آیا۔ بیلنسکی نے پور فولک کا دیباچہ لکھا اور دوستوفسکی کی تعریف کی۔ کتاب چھپ گئی اور دوستوفسکی دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا۔ لیکن اس ناول کے چھپتے ہی دوستوفسکی پر آہستہ آہستہ مشکلات کے دروازے کھلنے لگے۔ اسے یقین ہو گیا وہ بہت بڑا لکھاری ہے۔
बेलिंस्की ने दिबाचे में उसकी तारीफ कम की है, चुनाचे सबसे पहले वो उससे लड़ा, दोस्तों से झगड़ा, पब्लिशर से एडवांस लिया, किताब मुकम्मल न की, कर्जे बढ़ गए, कहानियाँ लिखी फजूल साबित हुई, मिर्गी के मर्ज ने घेरा डाल लिया और सबसे बड़ा और खौफनाक वाक़या ये हुआ कि वो गिरफ्तार हो गया। दोस्तोयेवस्की को 29 अप्रैल 1849 में गिरफ्तार किया गया। पीटर पाल के कल्ले में मुकदमा चला। उसका यह जुर्म था कि वह नौजवानों की एक ऐसी तंजीम का फाल रुकन था जो सेंसरशिप के खिलाफ थी, जो किसानों और आम आदमी के हकूक़ के लिए काम करती थी। मुकदमा 15 आदमियों की फांसी की सज़ा पर ख़त्म हुआ। पीटर पाल के हाथे में उन्हें 100 फांसी की सज़ा देने के लिए ले जाया गया। दोस्तोयेवस्की ने चंद दिन बाद अपने बड़े भाई मिखाइल को ख़त लिखा, जिसकी चंद लाइनें इस तरह थीं: यह 22 दिसंबर की बात है। हमें गोली मारने के लिए हाथे में ले जाया गया और हमें फांसी का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। हमें आखिरी बार सलीब को चूमने की इजाज़त मिली। सफ़ेद कपड़े पहनाए गए, चेहरे पर काले नकाब चढ़ाए गए। मुझे 6 की कतार में खड़ा किया गया। मुझे इस वक्त बहन भाई याद आए। मुझे तुम सबसे ज़्यादा याद आए। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और फिर अचानक तनी हुई बंदूकें नीचे झुक गईं और हमें एक हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया कि जुल्ले सुबहानी ने हमारी फांसी 7 साल कैद में तब्दील कर दी है। और फिर दोस्तोयेवस्की को 7 साल के लिए साइबेरिया भेज दिया गया, जो दोस्तोयेवस्की की फ़नी ज़िंदगी में एक नया मोड़ साबित हुआ। यूँ तो हर अच्छा लिखने वाला अपनी ज़िंदगी अपने माहौल और समाजी और माशी ज़िंदगी से लिखने का मवाद हासिल करता है, लेकिन दोस्तोयेवस्की के यहाँ इस उनसर की परछाइयाँ कुछ ज़्यादा और पुरएतमाद और फ़नकाराना अंदाज में मिलती हैं। इसी हुनरमंदी ने उसे दुनिया का एक बड़ा नावल निगार बना दिया। पैदाइश से लेकर मौत तक उसकी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात पेश आए। उसे नफसियाती, माशी, रोमानवी, सियासी, जज्बाती और तबकाती हालात से दो चार होना पड़ा। इस जंग में वो साबित कदम रहा और हालात बिगड़ते और संवरते रहे। इस बिगाड़ और सुधार में उसके एतमाद और साबित कदमी का बड़ा अमल दखल था। और ये सब बातें वाक़यात और ट्विस्ट्स की तहरीरों, नावल के कितारों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। मसलन दोस्तोयेवस्की का बाप शराब में धोते ये कहता था कि मेरे मुंह में वोडका उंडेल दो, और दोस्तोयेवस्की की नावल में ये कैफियत एक किरदार दिखाई गई। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। दूसरी बात यह है कि दोस्तोयेवस्की के वालिद के बारे में मशहूर था कि वो बड़ा कमीना, जज्बाती और बेवकूफ़ था। ब्रदर्स करमाज़ोव में बाप का किरदार दोस्तोयेवस्की के बाप की कार्बन कापी है। दोस्तोयेवस्की मिर्गी का मरीज़ था। उसके नावल इडियट का शहज़ादा मशकीन और ब्रदर्स करमाज़ोव में चौथा नाजायज़ बेटा इसी मर्ज़ में मुब्तला दिखाया गया है। दोस्तोयेवस्की 1863 में यूरोप के दौरे पर गया। जुए के अड्डे पर उसकी मुलाकात एक मॉडल औरत से हुई जो बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम था अपोलिनारियासिस। दोस्तोयेवस्की ने उससे इज़हार मोहब्बत भी किया, लेकिन उसने मुस्कुरा कर मुँह फेर लिया। दोस्तोयेवस्की सारी उम्र उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहा। दोस्तोयेवस्की ने अपनी 2 किताबों जुर्म और सज़ा और ब्रदर्स करमाज़ोव की हीरोइन इसी औरत को मॉडल बनाकर तश्कील दी। दोस्तोयेवस्की के वो खतूत जो उसने साइबेरिया से अपने भाई को लिखे, दोस्तोयेवस्की की फ़नी और तख्लीकी ज़िंदगी के बारे में बेइल्म होने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। दोस्तोयेवस्की का तख्लीकी निज़ाम किन असूलों के तहत तश्कील पाता था, वो फ़न पारे की तश्कील में कितना संजीदा था और अपनी तहरीरों की नोक पलक की किस तरह संवारता था। एक बार उसके भाई ने उसे ख़त में लिखा कि उसने एक नशिस्त में अपनी पेनलिंग मुकम्मल कर ली है। दोस्तोयेवस्की ने उसे 31 मई 1858 को एक ख़त में लिखा, क्या कहा तुमने? तस्वीर एक नशिस्त में मुकम्मल कर ली है? ये पेंटिंग का फ़न तुमने कहाँ से सीखा? भले आदमी तख्लीकी काम के लिए मुसलसल मेहनत दरकार है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि पिशकन के लिखे चंद मिसरे एक नशिस्त में कहे गए हैं? नहीं, तुम क्या जानो इस पर कितना वक्त लगा, पिशकन ने इनकी कितनी काट छाँट की। कहा जाता है कि शेक्सपियर कभी अपने लिखे की काट छाँट नहीं करता था, इसलिए उसके यहाँ बेशुमार गलतियाँ और खामियाँ मौजूद हैं। काश उसने अपने काम पर मेहनत की होती। एक दूसरे ख़त में वो लिखता है, ब्रदर्स करमाज़ोव का प्लाट मुझे 3 साल परेशान करता रहा। मैंने 9 साल इस पर मेहनत की और नावल मुकम्मल हुआ। अपने लिखे हुए मसवदे को बार बार पढ़ना उसकी काट छाँट दोस्तोयेवस्की की आदत सानिया थी, इसलिए एक नक्काद की नज़र में दोस्तोयेवस्की का एक एक हर्फ काबिल मुतालिया है। साइबेरिया के जेल में गुजारे हुए 7 साल ने दोस्तोयेवस्की को बदल कर रख दिया। वो उसकी ज़िंदगी को शट अप इन कोफिन का नाम देता है। जेल के दिन रात, जेल का माहौल, सोती जागती तन्हाई और खामोशी ने उसे इंसानों के अंदर झांकने का आदी बनाया। मौत का खौफ हर वक्त वहाँ उसके जहन में समाया रहा। वो चिड़चिड़ा और तल्ख मजाज होता गया। कैद की बैरक का जिक्र करते हुए कहता है, हम सब एक बैरक में रहते थे जो कभी नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दी गई थी। टूटे दरवाजे, टूटी दीवारें, सर्दियों में शदीद सर्दी, इसमें दिन की रोशनी रात की स्याही की तरह थी। हम सब में से खंजीरों की बदबू आती थी। इसी में हम नहाते और इसी को बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल करते। फर्श पर 1-1 इंच गंदगी जमी रहती थी।
लकड़ियों को जलाया जाता था, लेकिन खिड़कियों पर जमी बर्फ़ हम देखा करते। मैं तुम्हें बतला नहीं सकता कि मेरी रूहानी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगा, मुझे भूल न जाना। मुझे दो चीज़ें चाहिए, पैसे और किताबें। दोस्तोफ़स्की ने साइबेरिया के क़याम के दौरान बहुत मुताला किया। वह अपने खतूत में भाई से सिर्फ़ और सिर्फ किताबों की फ़रमाइश करता है, पैसे उसका भाई उसे बगैर कहे भिजवा देता था। दोस्तोफ़स्की ने इस क़याम के दौरान किन किन किताबों का मुताला किया, जबकि दिन को भी जेल में रात का समा था। इन किताबों की फ़हरिस्त पढ़कर बड़ी हैरत होती है। जुलाई 1840 के ख़त में वो अपने भाई को लिखता है, मुझे अखबारात ना भेजो। यूरोप की तारीख़, हेरोडोटस, क्लासिक किताबें, माशियात की किताबें, प्लूटार्च और कुरान जर्मनी तर्जमा। कुरान शरीफ की फरमाइश दोस्तोफ़स्की ने दो खतूत में की। एक ख़त में वो भाई को लिखता है, मुझे कुरान भेजो और हेकल की तारीख़ फ़लसफ़ा। मैं अब नावल और ड्रामे लिखना चाहता हूँ, लेकिन पहले ढेर सारा मुताला करना चाहता हूँ। पता करो क्या कोई ऐसा ज़रिया है कि मेरी तहरीरें छप सकें। मुझे पैसे चाहिए प्लीज़। साइबेरिया के इस क़याम ने एक आलमी सतह पर नाम कमाने वाले नावल निगार को तैयार किया। दोस्तोफ़स्की का नावल हाउस ऑफ द डेड, नोट्स फ्राम अंडरग्राउंड में वो ज़हनी कर्ब और रूहानी आहो-फ़ुगां सुनाई देती है जो उस माहौल की वजह से उसकी तहरीर में आई। नोट्स फ्राम अंडरग्राउंड पढ़कर भी नीत्शे ने कहा था कि ये क्राइड ट्रुथ फ्रॉम ब्लड है, और इन अल्फाज में दोस्तोफ़स्की को दाद दी थी। दोस्तोफ़स्की वाहिद नफ्सियातदान है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मुसन्निफ़ और उसकी तहरीरें मेरी ज़िंदगी की वाहिद मुसरत हैं। विल डुरैंट ने अपनी मशहूर किताब निशात फ़लसफ़ा में दोस्तोफ़स्की की किताब नोट्स फ्राम अंडरग्राउंड को वजूदियत का बुनियादी कारनामा करार दिया है। दोस्तोफ़स्की 1854 में साइबेरिया से वापस आया। साइबेरिया में अपने जब दोस्त मर गया, उसकी बीवी मारिया से शादी की और फिर लिखने की तरफ तवज्जो दी। जिन किरदारों को उसने जाना पहचाना था उन्हें अपने नावलों में बरूए कर लाया। नफसियाती तौर पर उलझे किरदारों को कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन में इस्तेमाल किया और रूहानी कर्ब में मुब्तला किरदारों को अपने तर्ज ज़िंदगी का अंदाज़ दिया। जदीद और रिवायती रूसी तर्ज एहसास की कशमकश पैदा की। इस सारे सफ़र में जुआ और रुपए का लेन देन, कर्ज़ों की बहुतात उसका पीछा करती रही। बीवी फौत हो गई और भाई मर गया जो उसे बेहद अजीज़ था। इस दौरान कर्ज़े और खाली जेब ने उसे और परेशान कर दिया। उदासी, बेचैनी और नाउमीदी ने ज़ोर पकड़ा और वह नफसियाती मरीज़ बनता चला गया। लेकिन एक चीज़ में यह दीवाना होशियार था और वो था पैसा कमाने का हुनर। जब वो जुर्म और सज़ा पर काम कर रहा था और पब्लिशर उसकी कई किताबें छाप चुका था, एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। जुर्म और सज़ा के माहदे के वक्त उसने पब्लिशर से वादा किया था कि वो उसे एक छोटा सा नावल लिख कर देगा। अगर वो यह नावल ना दे सका तो तमाम किताबों की रॉयल्टी से महरूम हो जाएगा। जब तारीख करीब आ गई तो उसकी पेशानी